गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास के लिए ले रहे हैं नया चैप्टर नंबर 9 जो रिलेटेड है अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से रिलेटेड। यहाँ हम इनकी कुछ पॉइंट्स आपको बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आ रहा है अपने पास इसमें मोनोमेल। द इंट्रोड्यूस ऑफ द चैप्टर दैट व्हाट यू मीन ऑफ मोनोमेल। मोनोमेल इक्वेशन हैव ओनली वन टर्म and one equation have only one term is called monomial. I tell you about the terms are divided by addition, I mean plus, and subtract, I mean minus. So you have the example of this monomial. For example, 5x. This is have only one term. Any one term you like that 3x y z. It is also one term. So these are example 15 y, this also one term, okay, y this also one term, z this also one term. It's okay. Equation have only one term is called monomial. And now we are taking the binomial. Binomial equation have two terms. For example, x plus y. I repeat once again, terms are divided by plus and minus. You like that x minus y. This also you are right of the example of a binomial. 3x plus 3y and 5xyz plus 2. These also example of the binomial. Now take a trinomial. Trinomial have three equation. In any one equation have three terms is called trinomial. Trinomial so that x plus y plus z. Okay, if you use here plus and minus both. Okay, for example, x plus y minus z and 3x plus y plus a. Any one variables you have the like if you want to use from a replace a and 15. This also like a trinomial. After then we are taking coefficient. What means of coefficient? Coefficient has the product of any example for the product of any variable. For example, 15x y z. Then you will say the product of x. The coefficient, I ask you from this equation the coefficient of x. Then you will write, then you left x and other every topics you will write x 15yz. मैं इसको हिंदी में क्लियरफाई कर दूं आपको। 15xyz, इसमें अगर आपको ये पूछा जाए तो कोफिशिएंट ऑफ x, तो x से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इस x से ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x का पूछा जाए तो x को छोड़ दो, बचा कौन? 15yz 15y। अगर मैं x की जगह में पूछ लूं y का, तब बताओ क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ आ जाएगा 15xz। ओके, एनीवन रिटर्न। फिर आपके पास आता है लाइक टर्म। Equation have same variable is called like term. For example, 15x, then here x, then all terms you have the x, and I replace x, then x square, 15x square. Then you will say all terms have x square, 7x square, 9x square, 2x square, minus 5x square. Okay, and minus 8x square. All terms are like terms. And I say other all terms have different variable. Then 5 7x y z, 9x 15a 7a b. Then all variables have different. Then we are say that these terms are unlike terms. Okay, एक बार और देख लीजिए। मोनोमेल वो जो इक्वेशन जिसमें ओनली वन टर्म वो मोनोमेल होता है, जिसमें टू टर्म्स वो बाइनोमेल होता है, जिसमें थ्री टर्म्स वो ट्राइनोमेल होता है,
जिसकी प्रोडक्ट की बात की जाए वो कोफिशिएंट होता है, और लाइक टर्म जिसमें सेम वेरिएबल हो लाइक टर्म होता है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल हो। वेरिएबल किसे बोलते हैं, ये एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, जो अपने एबीसीडी की 26 डिजिट्स है उनको हम वेरिएबल बोलते हैं। अब हम ले रहे हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। बिफोर एक्सरसाइज आई टेक आइडेंटिटीज। आपके कौन कौन सी आइडेंटिटीज आपकी इस बुक की एक्सरसाइज में है, इस 9th चैप्टर में आएगी, वो मैं बता दूं आपको। पहली एक्सरसाइज है पहली आइडेंटिटीज है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यू हैव लर्न अबाउट दिस एक्सरसाइज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिखने का तरीका देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, एंड सेकंड a माइनस b का होल स्क्वायर, देन ऑल्सो दिस a square, but here minus 2ab before the using minus 2ab plus b square. Okay, and third identities will be a square minus b square equal a plus b and a minus b. You have the different of these identities. This a minus b have whole square, and a square and minus b square is have different square, and the last x plus a and x plus b equal x square plus a plus b x plus a into b। फिर से सुन लीजिए, x plus a x plus b, इसका अर्थ ये हुआ पहला टर्म तो होना चाहिए सेम, x x का मतलब ये तो क्या हो गया सेम, और ये जो दोनों टर्म है ये होना चाहिए क्या डिफरेंट। क्यों, क्योंकि ए और बी सेम होते हैं डिफरेंट होते हैं, श्योर डिफरेंट होते हैं, इसलिए यह फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ओके, अभी हमें इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले हम ले रहे हैं 9.1 एक्सरसाइज। माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, यहां क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं हम, आइडेंटिफाई द टर्म्स, हमें आइडेंटिफाई करना है टर्म्स की, द कोएफिशिएंट उनके कोएफिशिएंट की, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सबसे पहले मैंने यहाँ टेबल लिया है, सीरियल नंबर का मतलब फर्स्ट हम क्वेश्चन का फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट में अपने पास है ये टर्म है, देखिए आपको इसमें दो टर्म्स नजर आ रहे हैं मेरे को। पहला टर्म्स आ रहा है पॉजिटिव के साथ है 5xyz स्क्वायर, दूसरा टर्म मेरे को नजर आ रहा है -3zy। अब बताइए इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो यहां पर जब तक आपको नाम नहीं दिया जाए किसका कोफिशिएंट लेना है, जैसे इसमें कुछ भी नहीं बोला गया कि आपको x का लेना है, y का लेना है या z का लेना है, तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस वेरिएबल के कोफिशिएंट लेना है। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट लेना है तो क्या लिख सकते हो, द कोफिशिएंट ऑफ x y z स्क्वायर इक्वल कितना आएगा +5। +5 क्यों आएगा, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वहां पॉजिटिव है। इसमें भी ये आएगा द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें क्या आएगा zy इक्वल आएगा -3। समझ में आया आपको, ऐसे आपको इन सबके सर्च करने हैं। हाँ, वहां क्या सर्च करोगे जहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो अभी इनकी बात करें हम, जैसे सेकंड की बात करें तो इसमें 3 टर्म है अपने पास, 1 है, दूसरा x है, तीसरा x स्क्वायर है। तो 1 का कोफिशिएंट तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 1 के पास कोई भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो कौन है 1 होता है, ठीक है ना। तो हम बात करें जो भी नंबर आए ओनली नंबर वाले की बात करें तो वही उसका कोफिशिएंट रहेगा। जैसे इस 3 वाले में 3 रहेगा, ठीक है ना। और x स्क्वायर का, इस x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, इसका भी 1 रहेगा, x स्क्वायर का भी 1 रहेगा, तीनों का 1 रहेगा। लेकिन बात करें हम इस 5th वाले क्वेश्चन की, तो इसमें अपने पास क्या आएगा कि इसका कैसे सर्च करें, तो इसमें आ जाएगा द कोफिशिएंट। मैं कर रहा हूं 5th वाला द, यानी कि यहाँ पर अपने पास 3 टर्म है, एक तो x/2, एक है y/2 और एक है माइनस का x एंड y। तो इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, तो यहां लिखोगे द कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा इसमें x। तो x के पास कौन है, तो इसके पास ये 2 नीचे है ना, यहां नीचे है ये 2, तो इसका मतलब ऊपर क्या रहेगा 1 रहेगा, समझ गए। तो इसका मतलब ये 1/2 है,
ये भी 1/2 है। अब इसका क्या आएगा बताओ कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट आएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर आएगा -1। ये ध्यान रखना, -1 क्यों आया, क्योंकि एक्स और वाई से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। इसके पास कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 1 है। क्यों है 1, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें वही रहेगा, तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स वाई आएगा ना। इसका मतलब जिसके पास कोई भी नंबर नहीं होता है वहां पर कौन होता है, 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन भेज दिया है इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूं। यहां पर हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है जैसे ये है, जहां जहां कोमा लगा हुआ वहां ये टर्म्स दे रखे हैं, कोमा लगते ही खत्म हो जाता है ये टर्म, यानी कि ये इतना बड़ा टर्म्स है, ध्यान देना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है अपने से, ये यहां तक है, कोमा लग गया ना, अब आगे यहां तक ये कोमा लग रहा है वहां तक कंप्लीट, एक एक है ना कंप्लीट है। तो अब बात करें, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कितने टर्म्स है, यानी कि इनमें कौन कौन, जैसे मोनोमेल है, बाइनोमेल है, ट्राइनोमेल है, या इनमें से तीनों में से कौन सा फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये अपने से क्वेश्चन पूछा जाए। तो सबसे पहले हम बात करें एक्स प्लस वाई को, तो ये क्या लिखा जाएगा बताओ, बाइनोमेल है क्या, क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म है 1000। ये क्या है, मोनोमेल है। मोनोमेल कौन सा होता है, मोनोमेल वो होता है जिसमें ओनली 1 टर्म हो। इसमें कितने टर्म है, इसमें 4 टर्म है। ये ना तो मोनोमेल है, ना बाइनोमेल, ना ट्राइनोमेल, एक होता है ट्राइनोमेल। तो आप चाहो तो लिख सकते हो ऐसे, बाइनोमेल लिख दो, सॉरी मोनोमेल लिख दो, फिर लिख दो बाइनोमेल एंड ट्राइनोमेल। तो मोनोमेल में कौन कौन आ रहा है, एक तो ये आ रहा है मोनोमेल में, यानी कि x प्लस सॉरी 1000 आ रहा है मोनोमेल में। तो फिर ये x प्लस वाई किसमें आएगा, बाइनोमेल में, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। और ट्राइनोमेल में कौन सा आएगा, ये देखो ये आएगा ट्राइनोमेल में, है कि 7 प्लस वाई प्लस 5x, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। अब इनमें लिखते जाओ, ये 4 टर्म्स वाले इनमें किसी में भी नहीं आएगा। इसमें कितने टर्म्स है, 3 है, तो ये इसमें आएगा 3 वाले में, यानी कि 5x को माइनस 4y प्लस 3xy, समझ गए होंगे शायद। ये किसमें आएगा, ये बाइनोमियल में आएगा, यानी कि 4z माइनस 15z स्क्वायर। अब इसमें अगर कोई भी जो फिट नहीं बैठ रहा वो जाएगा किसमें, पोलिनोमियल में। पोलिनोमियल क्या होता है मैं ये भी बता दूं आपको, पोलिनोमियल वो होता है जो इन टर्म से अलग हो, यानी कि इसमें 1 टर्म वाला आएगा, इसमें 2 टर्म वाला आएगा, इसमें आएगा 3 टर्म वाला। लेकिन अगर किसी में 4 टर्म आ जाए, जैसे इसमें आ रहा है 1 2 3 4, इसमें भी आ रहा है 1 सॉरी इसमें इनमें आगे और आएंगे उसमें आएगा, तो वो आएगा अपने पास किसमें जाएगा, वो पोलिनोमियल में जाएगा। ये इसमें 3 टर्म है ना, तो ये इसमें आएगा ट्राइनोमियल में आ जाएगा, आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हम, सभी ध्यान दें। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपका एक तरीके से देखा जाए तो फेवरेट है। क्वेश्चन नंबर 3 है वही क्वेश्चन है जो 7th में आपको एडिशन ऑफ एल्जेब्रिकल सिखाया गया था। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब हो गया, जिसे पहले मैंने लिया AB, फिर क्या आ रहा है माइनस BC, ध्यान देना। अब इस AB के नीचे सिर्फ AB का लिखा जा सकता है, BC के नीचे BC का लिखा जा सकता है। यहाँ कोमा लग गया ना यहाँ से, तो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है BC, तो इसके पास कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो ये आ गया BC। फिर क्या लिखा हुआ है CA, इसके नीचे नहीं लिख सकते तो माइनस CA है, तो ये आगे रहेगा CA। फिर उसके आगे चले ये, तो ये है प्लस का CA, ये है ना, और ये है माइनस का AB, तो ये AB के नीचे आएगा, इसी लाइन में आएगा, क्योंकि ये थर्ड एक टर्म, फिर दूसरा ये आ गया तीसरी लाइन का, तीसरी लाइन में रहेगा, तो ये CA के बाद ये AB कहां लिखा जाएगा, AB के नीचे, लेकिन इसी की लाइन में यहाँ A और B, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, एडिशन करते समय क्या इनके चिन्ह चेंज होते हैं, नहीं होते, चिन्ह चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट करते समय, ध्यान रखना ये बात। तो हमें इसमें कोई चिन्ह, तो देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो ये सब का आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। समझ में आया।
अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसका, ये फोर्थ वाला, फर्स्ट लिया फोर्थ लिया, सेकंड और थर्ड आपको करना है, ठीक है। तो ये आ गया एल स्क्वायर, यहाँ पर आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ये है ना एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर आ रहा है अपने पास एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, फिर आ रहा है एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर भी रहेगा, अलग है तो अलग ही रहेगा, फिर आ रहा है यहाँ पर एन स्क्वायर, तो ये इस एन स्क्वायर के नीचे आ जाएगा, फिर आ रहा है एल स्क्वायर, तो इसी लाइन में एल के नीचे आ जाएगा एल स्क्वायर, क्लियर। फिर अपने पास आ रहा है 2lm, ये एक लाइन हो गई, दो लाइन हो गई, तीन लाइन, यानी कि अब हमारे पास ये फोर्थ लाइन में रहेगा। तो अब ये ना तो इनमें से किसी में भी नहीं है ना, तो आप इस फोर्थ लाइन में, ये फर्स्ट लाइन हो गई, फिर ये सेकंड लाइन हो गई, ये थर्ड लाइन हो गई, और ये फोर्थ लाइन के लिए आप कहां लिखोगे, अब आप ये ध्यान दें, इन सबके बाहर की तरफ, यानी कि 2lm 2mn प्लस 2nl, यह आएगा ना। अब इनको एडिशन करिए, अब एडिशन करते समय ध्यान दें, इसका नीचे ये एडिशन का, ये आंसर का सीट का अपना, तो यहां से ये आ जाएगा 2nl, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसके ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, फिर प्लस 2n या mn है, ये ध्यान रखना, mn, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 2mn, क्लियर। मैं ये लाइन ये मिटा देता हूं, आपको एडजस्ट करने के लिए बताया ताकि आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। आ गया, फिर यहां आ जाएगा प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा 2lm, क्लियर है। फिर इसके पास कोई भी चिन्ह है तो चिन्ह जरूर लगाना प्लस, कोई भी चिन्ह नहीं होता वहां पॉजिटिव होता है। अभी यहां बताओ कितना हो गया, 1 और 1 2l स्क्वायर हो गया क्या, क्यों, क्योंकि ये 1 बार है, ये भी दोनों ही क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो ये प्लस के 2 हो गए, ये भी दोनों प्लस हो रहे हैं, चिन्ह जरूर लगाते रहे। 2m स्क्वायर पॉजिटिव रहेगी, ये भी आ जाएगा 2l स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी एडिशन को कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं इसी एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन, ये है सब्ट्रैक्ट से रिलेटेड। सब्ट्रैक्ट करते समय ध्यान दे, जैसे मैं एक तो ले रहा हूं ए वाला, ये यहां तक है और दूसरा यहां तक है, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है, फ्रॉम। सब्ट्रैक्ट करते समय जब फ्रॉम आ जाए तो इसका मतलब सेकंड वाला पहले, इसका अर्थ ये हुआ ये वाला माइनस करना है इसमें से, तो ये नंबर पहले उतारिए, यानी कि 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, राइट हो गया। इसके बाद हमें लेना ये, जैसे 4a तो इसके नीचे आ जाएगा 4a, फिर 7ab माइनस के साथ है तो 7ab, क्लियर है, प्लस 3b इसके नीचे आएगा 3b प्लस 12। सब्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान दे, थोड़ी यहाँ पर जगह छोड़े, एक लाइन जगह की छोड़े। सब्ट्रैक्ट करते समय जो प्लस है वो तो हो जाएगा माइनस, जो प्लस है वो तो हो जाएगा माइनस, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो बताओ यहाँ क्या होगा, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है तो इसका माइनस होना चाहिए। अब हम बात करें ये माइनस का 3, ये माइनस का अब क्या हो गया 12 हो गया, तो माइनस के 3 और माइनस के 12 माइनस के कितने हो गए 15 हो गए क्या, ठीक है। ये प्लस के तो कितने हैं 5 और माइनस के कितने हैं 3b, प्लस की ज्यादा है क्या माइनस की ज्यादा, तो मेरे को प्लस की ज्यादा नजर आ रहा है, इससे कितने ज्यादा है प्लस के से 2b ज्यादा है, क्लियर। ये माइनस के 9 है और ये प्लस के 7 है, तो प्लस की ज्यादा है माइनस की ज्यादा है, तो मेरे को माइनस के ज्यादा नजर आ रहे हैं, इससे कितने ज्यादा है 2, तो माइनस के 2ab, क्लियर। अब यहां पर अपने पास 12 में से ये 4 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8a, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे में एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं सी वाला, इसको भी कैसे लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है तो जहां फ्रॉम लग जाए, फ्रॉम का मतलब से, तो इसमें से करना है अपने को सब्ट्रैक्ट। अब इनमें से सब्ट्रैक्ट करते समय कैसे लिखोगे आप, लिखते समय भी आप चाहो तो ये सेम लिख लो, या मेरे को सबसे पहले क्या होता है, ये जो डिजिट होता है ये ओनली नंबर वाला डिजिट, ये सबके लास्ट में लेना चाहिए, हमें सबके लास्ट में लेना चाहिए, या सबसे पहले ये पावर वाले लेने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहां पर देखिए पावर वाला, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। ये लिखने के बाद इसके नीचे तो कौन आएगा, देखो 18 के नीचे सबसे पहले हम बात करें 4p स्क्वायर q, तो 4p स्क्वायर q, ये p स्क्वायर वाला q वाला ये है ना, तो इसके लिए आ जाएगा 4p स्क्वायर q। ये ध्यान रखें इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो पॉजिटिव है,
फिर आएगा -3pq, तो pq का ये रहा मेरे पास, ये ना, तो इसके नीचे आ जाएगा -3pq, क्लियर है। फिर आ जाइए प्लस p एंड q स्क्वायर, ये ना, इसके नीचे आ जाएगा पॉजिटिव 5p एंड q स्क्वायर, क्लियर। फिर आ रहा माइनस का 8p, इसके नीचे आ जाएगा -8p, सही है। फिर आ रहा 7q, पॉजिटिव के साथ यहां आ जाएगा 7q। फिर आ जाएगा -10, ये आ जाएगा -10, चिन्ह क्या कर दिए जाते हैं, चेंज, ये माइनस का पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब हम बात करें, देखिए ये पॉजिटिव का 5 और नेगेटिव का 4 है, तो प्लस का बचना चाहिए माइनस का, तो मेरे पास प्लस का 1 और वेरिएबल ऐसे कैसे आ जाएगा p²q। इसमें देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस के, तो माइनस के 5 और माइनस के 2, माइनस के कितने हो गए 7 सॉरी, p एंड q स्क्वायर इसका वेरिएबल है। इसमें देखिए ये भी प्लस का है, ये भी किसका हो गया प्लस का, पहले माइनस का था लेकिन ये चिन्ह नहीं लेंगे, हम ये लेंगे, तो 5 और 3 कितने हो गए 8 p एंड q। अब बताइए माइनस का 11 और माइनस का 7 कितने हो गए, माइनस का 18 q, ये माइनस का तो हो गया 3 और प्लस का हो गया 8, प्लस का ज्यादा माइनस का, मेरे को प्लस का ज्यादा नजर आ रहा है, कितना 5 इससे, तो प्लस का 5p। अब बताइए यहाँ पर ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो 18 और 10 कितने हो गए 28। अगर आप इसमें आगे पीछे भी लिख सकते हो, इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर देखिए पहले मैं बता दूं 1 हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, ये ध्यान रखें। और बाकी का ये आगे पीछे अगर आंसर के में आ रहा है तो कोई गलत नहीं है, इसमें आगे पीछे हो सकता है, ये आपको लास्ट में भी मिल सकता है, ये बीच वाले आगे पीछे भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी 9.1। सभी ध्यान दें, इन्हीं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो खुद भी ट्राई करें, या मैंने बताया ये ना सोचे कि सर ने जो बताया वो क्वेश्चन हम ट्राई करें या नहीं करें, उन सबको ट्राई करना नेसेसरी है। धन्यवाद।